Hello dear students, this is Vidya ma'am, and in this video we are going to study the second unit of your paper 2, that is electrochemistry 2. And firstly we are going to take the part B of this unit. So first topic of part B is migration of ions. So what is the migration of ions? You know that migration means transfer from one place to another. So here we are taking electrolytic solution and we are passing the potential, electric potential, and that means applying electric potential to that solution. So what will happen after applying electricity to the solution? Electrolysis of the solution will starts. That means the ions will move towards their opposite electrodes and gets discharged there. Okay, so depending on the speed of cation and anion, the solution must be with some ionic charge, but it does not happen. That means the solution is electrically neutral. Whatever the speed of cation and anion, it doesn't matter. Okay, so how this happens? So the illustration of this fact about the electrically neutrality of the solution, in spite of the differ in the speed of cation and anion, is explained here in this video. So we will first take the type of the electrodes of electrolytic cell that are the electrodes are non-attackable, means neutral type of platinum electrodes we will take. You know the how this electrolytic cell is prepared. Okay, so suppose we have taken two non-attackable electrodes considered as anode and cathode. Okay, so suppose we have taken the solution, electrolytic solution. Now we will consider this solution in three compartments. One is anodic compartment, other is cathodic compartment, and the third one is the central part, that is the neutral compartment. Okay, so what will happen when we apply the electricity? So case 1, that is the this case 1. Okay, here before applying electricity, in each compartment the number of positive charges and the number of negative charges, that is cations and anions, are equal. Okay, note one thing, that this central compartment is always with no change. Okay, there will be no change in central compartment. That means no change in the number of cations and anions. Okay, it will maintain the number of cations and anions. No doubt that these compartments are completely imaginary. No such compartments are visual in the electrolytic cell. So what will happen if the electrodes are not attackable? Okay, so you can see here, this is cathode and this is anode. Okay, that means negatively charged electrode and positively charged electrode. Okay, so we consider the first case with no electric field. Okay, means in absence of electric field, all the compartments contain 4 cations and 4 anions. Okay, 4 cations and 4 anions. Now we will consider case 2. Okay, here we are going to consider the cation is stationary. That means cations are not moving. Okay, here you can see in absence of electric field 4 cations are there, and here also in cathodic compartment 4 cations are present. Means we are considering the speed velocity of cation is u is equal to 0. That means cations are stationary. Okay, and we are also considering the speed of anions, that is the velocity or anions is equal to v is equal to 2. That means 2 anions are moving. Okay, what we are considering, listen carefully, we are considering the speed of anions
speed of cations is 0. Okay, that means cations are stationary. You can see all the 4 cations are present in each compartment here. Okay, and we are considering the velocity of anions is equal to 2. That means the anions are moving with the velocity v is equal to 2. So what will happen here? Okay, what will happen? 2 anions. Okay, जब यहाँ पर 4 कैटायन और 4 एनायन है, ठीक है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में से एनायंस मीन्स निगेटिवली चार्ज जो आयंस है वो मूव हो रहे. कितने मूव हो रहे? हमने स्पीड कंसिडर की थी इक्वल टू 2. तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे, मतलब वो एनोड की तरफ आएंगे. ये निगेटिवली चार्ज है तो वो मूव होंगे पॉजिटिवली चार्ज की तरफ. तो यहाँ से 2 एनायन निकले, ठीक है, वो पहले आए सेंट्रल कंपार्टमेंट में, फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट से निकल के वो इधर आए अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, ठीक है. तो यहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट में टोटल एनायंस जो है वो 6 हो गए, ठीक है, और 2 एक्सेस एनायंस दिख रहे हैं यहाँ पर. ये जो 2 है वो एक्सेस एनायंस दिख रहे हैं. अब जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंपार्टमेंट में? इस कंपार्टमेंट में ये हो रहा है कि यहाँ पर 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, उनके पास कॉम्बिनेशन के लिए निगेटिवली चार्ज्ड आयंस अवेलेबल नहीं है, तो वो भी यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है. मतलब अगर कैटायंस मूव नहीं हो रहे तब भी कैटायंस का डिस्चार्ज हो रहा है उनके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, जबकि उनकी वेलोसिटी स्टेशनरी है, ठीक है, 0 कंसिडर की है. तब ये हुई केस 2. ओके, नाउ केस 3 हम कंसिडर करते हैं वेयर द स्पीड ऑफ बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर सेम. दैट मीन्स u is equal to 2 and v is equal to 2. The speed of both are same. So what will happen here? तो यहाँ से एनोडिक कंपार्टमेंट में से दो कैटायन निकलेंगे और वो पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है, उसके बाद में वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? इसकी भी वेलोसिटी मतलब एनायंस की भी वेलोसिटी 2 है, तो यहाँ से 2 एनायंस निकलेंगे, पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है. तो टोटल जो है यहाँ पर जो एनायंस है उनकी, यहाँ पर एनायंस की वैल्यू कितनी हुई टोटल? वो हो गई 6, ठीक है, और यहाँ पर कैटायंस की वैल्यू कितनी होगी? 6. डिस्चार्ज कितने हो रहे? यहाँ से 2 कैटायंस निकले थे तो उनके जो एनायंस है वो बचे वाले, और 2 इधर से ट्रांसफ़र हो गया है वो, तो टोटल डिस्चार्ज होगा 4 का यहाँ पर. वैसे ही सेम इस इधर भी हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो रहा है इस केस 3 में, जब दोनों की स्पीड सेम है तब की बात है, ठीक है. मतलब जब हमने देखा कि एक बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था और एक उसके डबल स्पीड से जा रहा था, तब भी डिस्चार्ज रेट दोनों कंपार्टमेंट में सेम था. अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तब भी दोनों कंपार्टमेंट में जो डिस्चार्ज है दोनों की तरफ सेम है. इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ द 4th केस. ओके, 4th केस में क्या कंसिडर करना है? हमें कंसिडर करना है कि एनायंस आर मूविंग विथ डबल स्पीड एज कम्पेयर टू कैटायन. मतलब अगर हम एनायन की स्पीड 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, और कैटायन की स्पीड हमें कंसिडर करनी है, एनायन की स्पीड हम कंसिडर करेंगे 1 और कैटायन की स्पीड हमें कंसिडर करनी है उससे डबल, दैट इज़ 2.
ओके। सो इस केस में क्या होगा, एक्सेस एनायन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 3 का वो एनोड कंपार्टमेंट में बढ़ेगा, और एक्सेस कैटायन कॉन्सेंट्रेशन वो भी 3 का कैथोड कंपार्टमेंट में बनेगा। और 3 यहाँ पर, मतलब इधर से सिर्फ एक ही, यहाँ से सिर्फ एक ही कैटायन इधर आया और यहाँ से 2 एनायन इधर आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस हुए 3, यहाँ पर एक जो उधर से आया वो, और इसके जो पहले यहाँ से 2 जाने की वजह से जो बचे रहे 2 वो, तो टोटल यहाँ पर भी 3 डिस्चार्ज हो रहे, यहाँ पर भी 3 डिस्चार्ज हो रहे। इसका मतलब ओवरऑल रेट जो है डिस्चार्ज का वो सेम है दोनों तरफ, दैट इज़ 3 का, ठीक है। तो इस चारों केसेस पर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक, हम चारों केसेस पर से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखेंगे हम। ये आपके इस तरीके से नोट्स आप लिख लेंगे अपने बुक में, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डिस्चार्जिंग दोनों इलेक्ट्रोड पे किसी भी कंडीशन में, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड इज इक्वल, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड, कैटायंस की स्पीड कितनी है, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस डिस्चार्ज सेम हो रहे दोनों इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। द फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड कैथोड लेते हैं हम या फिर एनोड लेते हैं, उसके अराउंड में जो भी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उससे निकलने वाले आयंस की स्पीड पर, ठीक है। मतलब एनोड से जो दूर जा रहे आयंस उनकी स्पीड पर एनोड कंपार्टमेंट में कितना फॉल होगा वो, और कैथोड से जो दूर जा रहे उनके, कैथोड से कौन दूर जा रहे, एनायंस निकल रहे, और एनोड से कौन दूर जा रहे, कैटायंस निकल रहे। तो कैटायन की स्पीड पर फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वैसे ही एनायंस की मतलब कैथोड कंपार्टमेंट में फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पीड ऑफ एनायन पर। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन, एंड फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनायन। सो उससे फॉर्मूला आएगा फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन around cathode divided by fall in concentration around anode is equal to speed of cation upon speed of anion, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट जब इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल होते हैं तब का, इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।